Jasodanandana Bhajajananjaya Yamunadhira Vani Jahaniam Yamunadhira Vani Jahaniam Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Janavallabha Giri Bharadhari Jai Gopi Janavallabha Giri Bharadhari Yasodhanandana Brajajaranjana Yasodhanandana Brajajaranjana Yasodhanandana Brajajaranjana Yamuna Tira Bharadhari Yamuna Tira Bharadhari Hey Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Rama, 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 Hare. Nitai Gaur. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Gaur Premanande. Srila Prabhupada ki jai. Harinam Sankirtan ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari 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 Bol. Om Gyan Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Sri Gurubhe Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sujivam Sadvaitam Sarvaduptam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Bhaja Patitan Ham Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Hey Gaura Bhaktavind Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimakti Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauramani Pucharine Nirvisesa Sunyavadi Pastyatya Desatarine. Srimad Bhagavad Gita, The Opulence of the Absolute, Chapter 10, verse number 18. तो आज हम भगवत गीता के अध्याय 10 श्लोक नंबर 18 पर चर्चा करेंगे। विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरणेनात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दनः विभूतिं च जनार्दन भूय कथम तृप्तिर्हि भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् शृण्वतो नास्ति मे अमृतम् विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरणेनात्मनो विभूतिं च जनार्दन भूय कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दनः भूय कथया तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम्। बोलो। Anyone else? कोई और पढ़ना चाहेगा? विस्तरेण विस्तार से आत्मना अपनी योगम योग शक्ति विभूतिम ऐश्वर्य को च भी जनार्दन हे नास्तिकों का वध करने वाले भूया फिर कथया कहे तृप्ति तुष्टि ही निश्चय ही शृण्वता
सुनते हुए, na asti नहीं है me मेरी amritam. अमृत को। Arjuna is speaking to Krishna. He addresses Krishna. O Janardana, again, please describe in detail the mystic power of your opulences. I am never satisfied in hearing about you, for the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. अनुवाद। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। परपट तात्पर्य। इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवत से उद्धरण है। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। Sutam prasangam mama virya samvido bhavanti ritkarna rasayana kata. Srimad Bhagavatam explains that devotees assemble. Why do they assemble? Not for some stock market program, not simply to talk about relatives, family members, and job. They assemble for Amrita Katha. श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है कि जो भगवान के भक्त हैं वो एक साथ एक जगह पर गोष्ठी करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसलिए वो एक साथ इकट्ठा नहीं होते हैं कि उन्हें कोई सामाजिक या व्यवहार की बातें करनी है या कोई परिवार से संबंधित बातें करनी है, बल्कि वो कृष्ण सुधा रस अमृत का पान करने के लिए एकत्र होते हैं। Amrita Katha means the nectar of the topics of the all good transcendental personality of Godhead. अमृत कथा का अर्थ यहाँ पर है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरित्र और महिमा का वर्णन करने वाले विषयों पर चर्चा करना। And this Amrita is for the Karna and for the heart. Rit Karna Katha. ये जो अमृत है ये हमारे कर्ण और हृदय के लिए है। It gives happiness to the heart. ये जो अमृत है ये हमारे हृदय को बहुत ही सुख का अनुभव कराता है। It's a sweet sound to the ear. बहुत ही मधुर ध्वनि है ये हमारे कर्णों के लिए। That's the nature of Krishna's activities. भगवान की दिव्य लीलाओं का यही स्वभाव है। And one who engages in hearing the glories of the Lord never experiences death. ऐसा व्यक्ति जो भगवान की कथा और महिमा का श्रवण करने में अपने समय को लगाता है, उसे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। The Bhagavatam in the second canto, third chapter, verse number 17, it says, both with the rising and the setting of the sun, another day is lost, except for those who engage in hearing the pastimes of the all-good personality of Godhead. श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में ये उद्धरण आया है कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, उसके साथ साथ
सामान्य लोगों के लिए जो समय है वो खत्म होते रहता है, व्यय होते रहता है, लेकिन भगवान के भक्त जो भगवान की शुद्ध दिव्य मधुर लीलाओं का श्रवण करते हैं उनके लिए काल का प्रभाव इस तरीके से नहीं होता। Because these pastimes, activities, names, forms, qualities are not part of this material world. They're transcendental, the divya. तो ये जो भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं हैं ये भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है, ये दिव्य जगत का हिस्सा है जो जड़ जगत से पूरी तरीके से भिन्न है। The one who takes part in these activities also becomes divya. और ऐसा व्यक्ति जो इन नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करता है या इनका हिस्सा बनता है वो भी दिव्य हो जाता है। Just like if you go into an elevator, the elevator takes you up. You don't do anything, but the elevator does everything and just takes you to the highest floor. जैसे हम स्वचालित सीढ़ियों का उदाहरण अगर लें तो उस पे अगर कोई व्यक्ति कदम रखता है तो वो अपने आप ऊपर की तरफ जाएगा, उसे अलग से कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। What is your connection with the elevator? The fact is you are in it, that's all. हमारा कोई उससे संयोग या कोई कनेक्शन नहीं है उस एलिवेटर से, उस स्वचालित सीढ़ियों से, बस वो अपने आप हमें ऊपर लेके जाता है। So when we connect with Krishna in his pastimes, his names, forms, activities, anything about the Supreme Personality of Godhead, we become transcendental. In other words, we become spiritualized. इसी तरीके से यदि हम भी भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं के माध्यम से यदि भगवान कृष्ण से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो हम भी दिव्य स्तर पर आ जाएंगे। And one who does that daily, और ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके की क्रियाकलापों को निरंतर करता है। now the sun is called Kala Chakra. उसके लिए काल चक्र का The sun is called Kala Chakra. जो सूर्य है उसे काल चक्र कहा जाता है। It's called Wheel of Time. इसे समय का चक्र, समय का पहिया कहा जाता So when the sun rises and then the sun sets, another day is gone. है। जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, एक नए दिन की शुरुआत होती है। And one's life is shortened और हर व्यक्ति का जो जीवन अवधि है वो छोटा होते जाता है by उसके the movement of the sun. जिस तरीके से सूर्य का मूवमेंट होता है, चलन होता है, उसके अनुसार। But one who engages in hearing the glories of the Lord is not affected by the rising and the setting of the sun. परंतु ऐसा व्यक्ति जो भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने में मग्न है, उसके लिए सूर्य के अस्त या उदय होने से या काल चक्र के चलने से कोई ज्यादा फर्क उसको नहीं पड़ता। Because that hearing is non-different than Krishna. क्योंकि भगवान की कथा का श्रवण करना भगवान से अभिन्न है। We're hearing about in Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit. और यही चीज हम श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं महाराज परीक्षित के माध्यम से। Maharaj Parikshit was cursed to die in 7 days. महाराज परीक्षित को श्राप प्राप्त हुआ था कि उनकी मृत्यु अगले 7 दिनों में हो जाएगी। He was a king. वो एक राजा थे। He had complete sovereignty over the whole world. उनके पास पूरे विश्व पर शासन करने का राज्य था। He was famous, वो बहुत ज्यादा powerful. वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत रूप से उनकी ख्याति थी। He was young. वो बहुत ही ज्यादा यूथ, Young. बहुत ही ज्यादा नव यौवन में थे। He had a very wonderful family. उनका परिवार भी बहुत ही भव्य था। He was unrivaled by any enemies. उनका कोई ऐसा शत्रु नहीं था जो उन्हें परास्त कर सके। But he was cursed लेकिन उसके बाद भी उन्हें श्राप मिला था to die in 7 days. कि उनकी मृत्यु अगले 7 दिनों के भीतर भीतर हो जाएगी। He didn't run to this doctor for some special treatment. वे किसी चिकित्सक के पास नहीं दौड़े किसी तरीके का इलाज लेने के लिए। He didn't go to Goa for vacation. ना ही वो गोवा जैसे शहर में छुट्टियां मनाने के लिए गए। What did he do? उन्होंने क्या किया? He decided to fast until death. उन्होंने निर्णय लिया कि वे व्रत करेंगे मृत्यु तक। But when he sat down on the banks of the Ganges beginning his fast, so many sages, saints and great souls came to see this king. लेकिन जब वो गंगा नदी के तट पर इस आमरण उपवास को करने के लिए बैठे तब बहुत सारे ऋषि मुनि बड़े बड़े महात्मा उन्हें देखने के लिए आए। And they were all thinking, what advice can we give him? और वो सब बहुत ही सुमधुर और बहुत ही बुद्धिमानी से उन्हें कुछ न कुछ राय देने आए थे। There were a whole variety of saints and sages that came from all over the universe just to see this king who was so powerful. Now he left everything just to fast to death. क्योंकि महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़ के अपना राज्य छोड़ के वहां पर गंगा तट पर बैठे थे, इसीलिए
सारे ब्रह्मांड के अलग अलग प्रकार के जो ऋषि मुनि और जो महात्मा हैं वो वहां पर उन्हें देखने आए थे। But by the arrangement of the Lord, a very powerful transcendental personality appeared on the scene. लेकिन भगवान के क्रियाकलाप से, भगवान की निर्णय के अनुसार इतना जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो आज मरणासन के लिए व्रत पर बैठा है। And that was Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami. और वहां पर शुकदेव गोस्वामी थे। And everyone, all the great saints and sages, as soon as they saw Sukadeva, immediately they got up, welcomed him as the best of all. जैसे ही शुकदेव गोस्वामी को आते हुए वहां पर सारे ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा, वो सब उनके सम्मान में खड़े हो गए और उनका स्वागत करने लगे। He was only 16 years old. वे सिर्फ 16 वर्ष की आयु के थे उस समय। He was fully self-realized in God consciousness. वो पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे और कृष्ण भावना भावित थे। And everyone understood he is the most qualified to give the advice. और उनके आते ही हर व्यक्ति समझ चुका था कि वो ही एकमात्र सबसे ज्यादा निपुण व्यक्ति है जो यहाँ पर महाराज परीक्षित को सही रूप से ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। So when a patient comes to the doctor analyzes the patient and prescribes the medicine for the benefit of the patient. जब कोई जो मरीज है वो किसी चिकित्सक के पास जाता है तो चिकित्सक पूर्ण रूप से उस मरीज का निरीक्षण करता है और फिर उसकी बीमारी के अनुसार उसको कुछ न कुछ औषधियां देता है। So what was that medicine? और वो औषधि क्या थी? To hear the glories of the Lord. वो औषधि थी भगवान श्री कृष्ण के महिमा मंडन के बारे में सुनना। And Sukadeva Goswami sat on the Vyasasan, the seat of honor. और फिर शुकदेव गोस्वामी व्यासासन पर बैठ गए। You can see the picture. Maharaj Parikshit is sitting by his lotus feet. उन्होंने देखा वहां पर महाराज परीक्षित उनके चरण कमलों के पास में विराजे थे। And for 7 days. और लगभग 7 दिन के लिए पूरे। With no break. इसमें कोई बीच में ब्रेक नहीं था। Throughout the night. पूरी रात भर चलता था। Sukadeva Goswami narrated the entire Bhagavatam. पूरे समय के लिए शुकदेव गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवतम का पठन करके उन्हें सुना रहे थे। What is Bhagavatam? भागवतम क्या है? Bhagavatam is the essence of all spiritual knowledge describing the pastimes, activities, forms, qualities, and pure devotees of Krishna. तो श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का सार अतिसार है। It's the best of all scriptures. ये सारे शास्त्रों में महान राजा है। One who hears Bhagavatam can become fully Krishna conscious. जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बन सकता है। Bhagavatam is none different than Krishna. It's called the literary incarnation of God. The Lord appears in sound in the form of Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम और भगवान कृष्ण अभिन्न है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ध्वनि रूप में श्रीमद् भागवतम के रूप में अपना अवतार लेते हैं। And for 7 full days, और लगभग Sukadeva Goswami narrated canto by canto, beginning with the second canto, actually the second canto, and he narrated the entire Srimad Bhagavatam. और एक एक करके स्कंद के द्वारा चर्चा करते हुए लगभग 7 दिनों तक शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत पर प्रवचन दिया। Maharaj Parikshit. और महाराज परीक्षित He didn't eat. और वो वहां पर सुनते रहे। Didn't sleep. वो सोए भी नहीं। Didn't drink any water. ना उन्होंने कोई जल का पान करा। He was absorbed. वो पूर्ण रूप से उस कथा में निमग्न थे। He listened to every word spoken by Sukadeva Goswami. वो बहुत ही ध्यान पूर्वक हर एक शब्द को श्रवण कर रहे थे जो शुकदेव गोस्वामी जी के द्वारा कहा जा रहा था। The word Sukha. जो वर्ड शुक है, जो शब्द शुक है, Sukha means parrot. शुक का मतलब तोता। You know what a parrot is, right? आपको पता होगा तोता किसे कहते हैं? It's a bird with a very curved beak. ऐसा पक्षी है जिसकी जो है चोंच काफी कर्व्ड रहती है। But it has a certain quality. पर उसके भी कुछ गुण हैं। If you give him that Sukha a mango and he bites the mango becomes more sweeter. उसमें एक गुण है कि अगर आप शुक को यानी तोते को एक आम खाने के लिए देंगे और अगर वो उसको अपनी चोंच से खाता है तो वो जो आम है वो और ज्यादा मधुर हो जाता है। So Sukadeva Goswami, simply by touching Srimad Bhagavatam, narrating Bhagavatam, it became even more relishable.
तो जब इसी तरीके से श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम को छुआ, भागवतम पर प्रवचन देना चालू करा, तो ये जो भागवतम अमृत के समान है ये और ज्यादा मधुर होता चला गया। He finished 6 days of narration, उन्होंने जब 6 दिन तक कथा बोल दी थी, 9 cantos in 6 days. 9 स्कंदों पर चर्चा हो चुकी थी 6 दिनों के अंदर। 10th canto, अब 10वां स्कंद आ रहा है, Krishna's pastimes in Vrindavan. भगवान कृष्ण की मुख्य लीलाओं का वर्णन। He stopped. वो रुक गए He said to Maharaj Parikshit, और महाराज परीक्षित से बोले, "You want some water? क्या आपको कुछ जल चाहिए, Do you want a break? या आपको कोई अंतराल चाहिए, Some rest?" कोई आराम थोड़ा? Maharaj Parikshit said, "This is what I'm waiting for, Krishna's pastimes." महाराज परीक्षित कहते हैं, मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि कब कृष्ण की कथाओं के बारे में चर्चा होगी। He became more enthusiastic. वो और ज्यादा उत्साह में आ गए। When the disciple becomes enthusiastic to hear, the teacher becomes more enthusiastic to speak. जब जो शिष्य है या श्रवण करता है वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है श्रवण करने के लिए, तो जो गुरु है या फिर जो प्रवचन करने वाला है उसका भी उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Sukadev Goswami congratulated him. सुखदेव गोस्वामी ने उनका सम्मान करा। He continued 10th canto, 11th canto, and finally he finished with the last skanda. और इस 12th प्रकार canto. उन्होंने 10वें स्कंद, 11वें स्कंद और 12वें स्कंद पर पूरी चर्चा कर कर भागवत को खत्म करा। After hearing the whole Bhagavatam, पूरी श्रीमद् भागवतम को सुन लेने के पश्चात he was asking questions, अब वो उनसे प्रश्न पूछने लगे हैं, because when we hear, we not necessarily always understand, so it's prashna is important. क्योंकि जब हम कुछ श्रवण करते हैं तो हर बार हम पूरा समझ पाएंगे ये जरूरी नहीं है, कुछ प्रश्न हमारे मन में आ सकते हैं। Just for further understanding, clarification, application. सिर्फ इसलिए ताकि हम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझने की शक्ति है, उसको और ज्यादा दृढ़ कर सकें और अपने जो स्मरण शक्ति है उसमें उस चीज को अच्छे से बैठा सकें। So it was like a dialogue between the guru and disciple. तो इस तरीके से लग रहा है जैसे एक गुरु और शिष्य के बीच में एक भव्य चर्चा चल रही है। After he finished, जब उन्होंने ये पूरा किया, Maharaj Parikshit became completely free from all fear. जब उन्होंने ये चर्चा पूर्ण करी तो महाराज परीक्षित पूर्ण रूप से हर प्रकार के भय से मुक्त हो चुके थे। He was destined to die very soon. जबकि उनकी मृत्यु होने वाली है कुछ ही क्षणों में। He was cursed to be bitten by a snake bird. उनको श्राप मिला था कि उन्हें एक ऐसा पक्षी जो सांप के समान है वो डसेगा और उनकी मृत्यु होगी। Very powerful bird called Tataksa. और वो पक्षी बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली था, तक्षक। He was very powerful. Simply by biting, he could kill a person. वो इतना शक्तिशाली था कि सिर्फ अपने एक बार डसने मात्र से वो दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कर सकता था। So that was the curse. ये उनके प्रति श्राप था। Now he was fearless. लेकिन अब उनमें कोई भय नहीं है। He realized that he was the eternal servant of the Lord. उन्हें इस चीज का साक्षात्कार हो चुका है कि वो भगवान के शाश्वत दास हैं। By hearing the glories of the Lord in the form of Srimad Bhagavatam, he became an associate of the Lord. भगवान कृष्ण के कथा और महिमा मंडन को श्रीमद् भागवतम से श्रवण करने पर वे स्वयं भी भगवान के पार्षद के स्वरूप पा चुके थे। And he was fearless. और अब वो पूर्ण रूप से भय से मुक्त थे। So when we say one who hears the message of Srimad Bhagavatam every day becomes free from death, it means that one transcends everything of this material world. तो जब हम कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है वो पूर्ण रूप से अपने भय से मुक्त हो जाता है, इसका अर्थ है वो जड़ जगत की सारी समस्याओं और बंधनों के परे जा रहा है। One understands, I am pure spiritual soul, part and parcel of Krishna. I have nothing to do with this material world. Now it is time to leave and join Krishna in the spiritual world. और इस तरीके से वो व्यक्ति समझ पाता है कि वो एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है, भगवान कृष्ण का शाश्वत आध्यात्मिक अंश है और उसका यहाँ पर इस जड़ जगत से कोई लेना देना नहीं है और वो प्रयास करता है कि इस जड़ जगत से मुक्त होकर भगवान के धाम जा सके। So one who hears regularly never gets tired of hearing. तो इस तरीके से जो व्यक्ति भगवान के बारे में निरंतर श्रवण करता है, You buy a newspaper, right? आप अखबार खरीदते हैं, Some news. कुछ खबरें आप उसमें पढ़ते हैं, Some politician cheated another politician. कोई नेता दूसरे नेता के साथ छल कर रहा है,
or somebody died, किसी की मृत्यु हो गई, some earthquake somewhere. कहीं पर भूस्खलन भूकंप आ रहा है, You read it once, आप बहुत अलग अलग टाइप की चीजें पढ़ते हैं, then you throw it in the garbage. ये सब कूड़े के समान। Or you wrap fish in it or something. Forget that one. In other words, you're done with it after one reading. एक समय के बाद You read it once and you're finished. You don't want to read it anymore. It's boring. एक बार आपने उसे पढ़ लिया तो उसके बाद वो आपके लिए कुछ ज्यादा रुचिमय नहीं रहता, आप उसको छोड़ देते हैं। But you can read Krishna's pastimes over and over again. You never get tired. लेकिन यदि आप भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप बार बार पढ़ने पर भी उससे जो है बोरिंग महसूस नहीं करेंगे, Because they're spiritual. क्योंकि ये आध्यात्मिक है, They're dynamic. ये नवीन है। There is two things, static and dynamic. दो चीजें होती है, एक होता है स्थिर और एक होता है निरंतर चलन। Static means you read something, you understand it, and that's it. You're finished. तो जो स्थिर चलन की बात कर रहे हैं, उसमें स्थिर का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज है जिसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसे रख देते हैं, उसके बाद हमारे वो किसी काम का नहीं होता। When you hear about Krishna, when you read about Krishna, you can hear the same thing over and over and over again, and it becomes Navayovana, never tiring. It's always new, always fresh. लेकिन जब हम भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में सुनते हैं, बारंबार 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 उसको श्रवण करने पर भी वो नवीन बना रहता है, नवीन रस का अनुभव कराता है और उसे हम जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। Just like chanting Hare Krishna. जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, We can chant, हम उसका जप कर सकते हैं, and we can chant more, हम और ज्यादा जप कर सकते हैं, and we chant every day. हम हर दिन उसका जप करते हैं। Some people are chanting 50, 60 years. और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 50 से 60 सालों से इस मंत्र का जप कर रहे हैं। Can you do that with anything material? क्या आप इस तरीके की क्रिया किसी भी भौतिक जगत की चीज के साथ कर सकते हैं? Anything material, you get tired. कोई भी भौतिक चीज के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो आप Give me, परेशान हो जाएंगे। give me something new, आप बोलेंगे, something different. मुझे कुछ नया दीजिए, कुछ भिन्न दीजिए। But with Krishna, same thing. You see the deity, oh, so wonderful. Then you come again the next day, it's even more wonderful. लेकिन अगर आप कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण वही है, लेकिन आप रोज आएंगे, विग्रहों को देखेंगे, प्रणाम करेंगे, रोज प्रणाम करेंगे, रोज आपको नया अनुभव होगा। So transcendental subject matters are what we say unlimited. तो ये जो दिव्य चीजें हैं, इनकी अंदर की जो क्षमता है वो अनिश्चित है। Anandam buddhi vardhanam. The happiness continues to grow more and more. आनंद अम्बुधि वर्धनम, ये जो आनंद है ये बढ़ता चला जाता है। Krishna, कृष्ण, he's a little boy. वो छोटे से बालक हैं, He's known as Makan Cho. उनका नाम आपने देखा होगा, माखन चोर नाम से प्रचलित है। He steals butter. वो माखन की चोरी करते हैं। God is a thief. भगवान एक चोर हैं And he gets punished. और उसके बाद उन्हें उसके बदले में सजा भी मिलती। But everything belongs to him. So when he steals, he's not a thief because it belongs to him anyway. पर क्योंकि सब चीज के एकमात्र जो पालन करता और जो अधिकारक है वो भगवान कृष्ण है, तो चुराने के बाद भी वो चोर नहीं है। If you run in the back room and steal from the Maha over here, you get caught. अगर आप पीछे वाले रूम में जाकर महा को चुराने का प्रयास करेंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा कि आप चोरी कर रहे हैं। But that's okay. That's a nice kind of thief. बट फिर भी ये चलेगा क्योंकि ये एक अच्छे प्रकार की चोरी है। But don't do it. बट सही नहीं। So Krishna, he likes to steal butter. तो भगवान कृष्ण को माखन चुराना पसंद है। His father, उनके जो पिता हैं, yeah, he's a cowherd man. वो एक ग्वाले हैं। He has 900,000 cows. उनके पास 9 लाख गायें हैं। And they all give nice milk products. और वो सभी बहुत ही अच्छे प्रकार से दूध और दूध से बनी चीजों को उनको प्रदान करते हैं। But Krishna goes to another house to steal. लेकिन उसके बाद भी भगवान कृष्ण दूसरे घरों में जाके चोरी करते हैं। There was one lady, her name was Prabhavati. एक महिला का बारे में आता है जिसका नाम है प्रभावती। And she would come to Mother Yasoda. She would come and complain to Mother Yasoda. वो जो प्रभावती है वो आती हैं और माता यशोदा से भगवान कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ कंप्लेन करती है। You're Lal, he's stealing my butter. ये बार बार आता है और मेरे घर से मक्खन चुराता है।
Mother Yasoda says, no, 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 no. Nay, 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 nay. मदर यशोदा नहीं 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 बोलती। No. Why would he go and steal your butter? We have nice butter here. वो क्यों जाएगा आपके घर पर मक्खन चोरी करने? हमारे पास बहुत सारा मक्खन है हमारे घर पे। And so she says, no, no, I know. He's stealing my butter all the time. I can't catch him, but I know it's him. वो मना करती है कि नहीं नहीं नहीं, ये बार बार मेरे घर पे मक्खन चुराने आता है, मैं इसको पकड़ नहीं पाती लेकिन ये आता है। So she goes away. वो इस प्रकार वो चले जाती है। She thinks, I'm going to catch that rascal Krishna. तो वो सोचती है कि एक दिन मैं कृष्ण को पकड़ूंगी। So she says, oh, Krishna, he comes through this window here. तो वो सोचती है कि कृष्ण जो है इस खिड़की के माध्यम से अंदर आते हैं, He sneaks into my house through the window. वो मेरे घर में प्रवेश करते हैं इस खिड़की से। So she puts bells on the window. तो वो She puts bells on the window. ओके, तो वो वहां पर एक मटकी बांध देती है खिड़की के पास में। And he said, when he comes and opens the window, then I'll hear the bells and I'll catch him. तो वो जो घंटी उन्होंने खिड़की के पास में बांधी थी, जब वो खिड़की में आएंगे तो वहां पे वो घंटी हिलेगी और उनको समझ में आ जाएगा। Then she's thinking, but maybe I should put bells on the butter pot too. फिर वो सोचती है कि मुझे कुछ घंटियां ये मटकी के ऊपर भी लगा देना So चाहिए। she hangs the butter pot high up, हो सकता है वो ऊपर बांधते मटकी को काफी, puts bells. तो वहां पे घंटियां बांधी जाएगी। Krishna's walking along. तो भगवान कृष्ण अकेले आ रहे हैं अंदर, He's about 3 years old. लगभग 3 साल की आयु है। His friend comes, उनके एक सखा आते हैं मित्र, Madhu Mangal. मधु मंगल। But Krishna says, hey, Madhu, वो कहते हैं, हे मधु, this is good butter. यहाँ पे बहुत अच्छा मक्खन है, Let's go. चलते हैं। Madhu says, yeah, but there's bells on the window. मधु मंगल कहते हैं कि हाँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी घंटियां लगी है खिड़की पे। Krishna said, never mind. कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो। Bells are my servants. वो कहते हैं कि जो घंटियां आई है मेरे नौकर हैं। Bells don't ring. वो घंटियों से कहते हैं तुम्हें बजने की आवश्यकता नहीं है। So he orders the bells not to ring. तो वो इस तरीके से भगवान कृष्ण आज्ञा करते हैं घंटियों को कि आपको बजना नहीं है। So they go. और फिर वो अंदर जाते They open the window. हैं, वो खिड़की खोलते हैं, The bells are quiet. अंदर जाते हैं, They're walking around. अंदर जा रहे हैं, चल रहे हैं, It's dark inside. पूरा अंधेरा है अंदर। But Krishna has not natural light coming from his body. पर कृष्ण के स्वभाव से नॉर्मल रूप से उनके शरीर से So कांति और तेज निकल रहा है। come to the room where the butter is. वो उस कक्ष में प्रवेश करते हैं जहां पर मक्खन रखा था। Krishna says to Madhu, hey Madhu. Ah. कृष्ण मधु मंगल से कहते हैं, हे मधु देखिए, Very nice butter. बहुत अच्छा मक्खन है, Let's go. चलो चलते हैं। Madhu says, there's bells on the pot. मधु मंगल कहते हैं कि देखिए वहां पर घंटी लगी है मटकी के ऊपर, No worry. कोई तरीका नहीं है। Bells are my servants. भगवान कृष्ण कहते हैं ये मेरे नौकर है। Bells don't ring. वो फिर घंटियों को हुक्म देते हैं कि आपको बजना नहीं है। So Krishna gets a chair, कृष्ण एक चेयर जैसा लाते हैं, stands on the chair, उस पटी के ऊपर चढ़ते हैं, reaches up, ऊपर की तरफ पहुंचते he हैं, grabs some butter from the pot, उस मटकी से कुछ मक्खन हाथ में लेते हैं, gives us to Madhu. मधु मंगल को And देते हैं, guess who comes? और सोचिए कौन आता है? Dahi Loba. Dahi Loba. दही को, Dahi Loba. दही को, He's a monkey. वो एक वानर है। Monkey, monkey, monkey. So he comes and he's got all his friends. वो आते हैं दही गोप जो कि वानर है और अपने सारे वानर मित्रों को लेकर। Whenever Krishna steals butter, he comes with his friends. जब भी भगवान कृष्ण माखन की चोरी करते हैं तो ये सभी साथी आते हैं And Krishna starts giving the butter to the monkeys. और फिर कृष्ण अपनी वानर मित्रों को वो मक्खन देना चालू करते हैं। And now all the monkeys get butter. Madhu has bunk. Now Krishna thinks, और सबको वो मक्खन देने के बाद भगवान कृष्ण खुद लेने जाए। now I'm going to eat some butter. अब वो सोचते हैं कि मैं कुछ मक्खन So लूंगा, he grabs the butter, कुछ मक्खन निकालते हैं, puts it in his mouth. अपने मुख में डालते हैं। सारी घंटियां बजने प्रयास, Let's go. They run out. सारी घंटियां बजती है और फिर उनको भागना पड़ता है। So they're outside. वो भाग जाते हैं। Madhu says, what happened? I thought you said the bells were not going to ring. मधु मंगल कहते हैं क्या हुआ, तुमने तो बोला था कोई घंटी नहीं बजेगी। Krishna says, I don't know. कृष्ण कहते हैं मुझे नहीं पता, I'm going to call the demigod in charge of bells. मैं जो है इन सारे बेल्स का जो है इंचार्ज हूँ। The demigod who's in charge of bells.
मैं उस देवता का आह्वान करता हूँ जो इन सारी घंटियों के अधिकारी हैं। So this big demigod comes. तो एक बड़ा सा देवता वहां पे आते हैं। He's got all bells all over him. उनके पास पूरे शरीर पर बहुत सारी घंटियां थी। He says to Krishna, वो कृष्ण के सामने बोलते हैं, "My dear master, you've called me." हे मेरे प्रभु, आपने मुझे, Yeah. Why did you ring? I told you not to ring. तुमने ये घंटियां क्यों बजने दी जब मैंने तुम्हें मना करा था? Yes, that we know. हाँ, वो मुझे पता है। But it says every time you eat, we have to ring. लेकिन ऐसा प्रचलन है कि जब भी भगवान कृष्ण को भोग लगता है तो घंटी बजाई जाती है, इसलिए उन्होंने घंटी बजा दी। Ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. So Krishna is defeated. तो ये कारण था। He doesn't know what to say. So then the lady of the house, she comes. तो वो जो घर में जो महिला, Ah, I caught you. मैंने तुम्हें पकड़ She लिया, grabs Krishna. कृष्ण को पकड़ लेती है। Now I'm going to take you to Mother Yasoda and she's going to punish you. अब मैं तुम्हें यशोदा माई के पास लेके जाऊंगी और फिर वो तुम्हें सजा देंगी। She grabs Krishna's hand. वो कृष्ण के हाथ को पकड़ लेती But है। then she thinks, I have to pass by Nanda Maharaj. मुझे पूछना पड़ेगा नंद महाराज से जाके। And Nanda Maharaj, he's so nice to Krishna. He won't do anything. So I have to hide Krishna from Nanda. क्योंकि नंद महाराज बहुत ही दयालु हैं कृष्ण के प्रति, तो वो कृष्ण को कोई सजा देने नहीं देंगे, इसलिए मुझे उनसे छुपा के ले जाना पड़ेगा। So she takes her sari. तो वो अपनी साड़ी से उसे छुपा के She ले जाती puts it over Krishna's head. है। कृष्ण के सर के ऊपर And अपनी she's साड़ी holding को him पकड़ by the hand. और हाथ से पकड़ कर ले She's जाती walking along. है और साथ में लेके जा रही है। She passes Nanda. वो नंद महाराज को क्रॉस She कर goes into the house. घर में प्रवेश करती Mother है। Yasoda is there. मदर Ah, यशोदा माई है वहाँ। Mataji, I caught him. माता जी, मैंने इन्हें पकड़ लिया। So she lifts up her sari. और वो साड़ी हटाती है And then Mother Yasoda starts laughing. और वो वहां पे देखती है। She said, "That's not my son. That's your son." यशोदा मैया कहती है, ये मेरा बेटा नहीं, ये तुम्हारा बेटा है। And she looks, it's her son. और जब वो देखती है तो उन्हें अपने बेटे दिखते हैं। And Mother Yasoda said, "That's all right. You've been working too hard. Go home and rest." तो यशोदा मैया कहती है, कोई बात नहीं, तुम बड़ी मेहनत करके कार्य करती हो, होता है, तुम घर जाओ। And now she's all confused. She walks out. अब वो और ज्यादा परेशान हो जाती है और घर के बाहर जाती है। Krishna comes up to her. कृष्ण उनके पास आते हैं। He said, "Next time you do that, I'll become your husband." कृष्ण कहते हैं, अगर अगली बार तुमने ऐसा करने का प्रयास करा तो मैं तुम्हारे पति का रूप धर लूंगा। Now, so Krishna's pastimes. Krishna always wins. He never loses. कृष्ण की लीलाओं में कृष्ण कभी हारते नहीं है, वो हमेशा जीतते हैं। So if we connect with Krishna, we'll never lose. अगर हम भी कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करेंगे तो हम भी कभी हारेंगे नहीं, हमेशा जीतेंगे। So to hear and chant the glories of the Lord is the happiness that devotees look for in Krishna consciousness. तो जो भक्तगण है वो हमेशा भगवान की कथा के माध्यम से अलग अलग प्रकार के रस और सुख का पान करने का प्रयास करते हैं। And there's so many pastimes. और इस तरीके की बहुत सारी लीलाएं हैं। How many of you were kids, you like to play hide and seek? You know that game, hide and seek? आप में से कितने लोग हैं जो अपने बचपन के समय में हाइड एंड सीक यानी छुपम छुपाई वाला जो खेल है वो खेला करते थे? Almost everybody. लगभग सभी। I think around the world, every kid played that game. मुझे लगता है पूरे विश्व में लगभग हर बच्चे ने इस खेल को खेला होगा। So all the nice games, they come from spiritual world. ये जितने भी अच्छे अच्छे प्रकार के खेल हैं ये सब आध्यात्मिक जगत से हमारे पास आ रहे हैं। So Krishna's there, तो कृष्ण है वहां पर, Radharani is there, राधा रानी है, the gopis are there. गोपियां हैं, Let's play hide and seek. वो सब आपस में छुपम छुपाई खेलेंगे। Radharani, you hide your eyes and you have to find everybody. तो कहा जा रहा है राधा रानी को कि आप अपनी आंखों को बांध लीजिए और आपको हमें ढूंढना पड़ेगा। So all the gopis, they go hiding. तो सारी गोपियां छुप जाती हैं, Krishna goes hiding. कृष्ण भी छुप जाते हैं। Now Radharani has to find everybody. अब राधा रानी को इन सबको ढूंढना है। And she's going this way and that way. वो इधर उधर जाके ढूंढने का प्रयास कर रही है। She's looking for the gopis. वो गोपियों को ढूंढ रही है। And soon as she gets nearby a the gopi starts laughing. और जैसे वो एक गोपी के नजदीक पहुंचती है तो वो गोपी हंसने लगती है। Because they have so much love for Radha, as soon as she gets near, they start laughing. क्योंकि उन गोपियों का राधा रानी के प्रति इतना प्रेम था, तो जैसे ही राधा रानी उनके निकट आती है तो वो हंसने लगती है। And so she catches all the gopis. इस तरीके से वो सारी गोपियों को ढूंढ लेती है। Now she has to find Krishna. अब उनको भगवान कृष्ण को ढूंढना है। Krishna is not so easy. और जो इतना आसान नहीं है। So she's looking.
वो ढूंढ रही है। When she gets close to Krishna, थोड़ा पास में जब भगवान की आ जाती है, he changes his position. वो अपनी स्थिति को बदल लेते He हैं, goes to another place. वो दूसरी जगह पर छुप जाते हैं, She can't find him. वो उन्हें ढूंढ नहीं पाती। She's thinking, where's that rascal? वो ढूंढ रही हूँ। And then she thinks, I have to do something. अब वो सोचती है उन्हें कुछ करना पड़ेगा। Ah, I know the secret. हाँ, मुझे पता है इसके बारे में। She starts singing वो गाने लगती है so sweetly. बहुत मधुरता से। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Hare. When Krishna hears her singing so sweetly, he can't move. He's frozen. He's stuck. और जब कृष्ण इतनी मधुरता से उन्हें गाते हुए सुनते हैं तो वो अपनी स्थिति से हिल नहीं पाते, वो पूरी तरीके से जम जाते हैं। And then she catches him. और इस तरीके से राधा रानी उन्हें पकड़ लेती है। I caught you. मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। And then Krishna says, you cheated. कृष्ण कहते हैं तुमने छल किया। And then she says, no, no, you just don't like to lose. That's all. नहीं नहीं नहीं, तुम्हें हारना पसंद नहीं, बस इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। So in the spiritual world, it's just a place for fun. You try to have fun here, and then somebody ruins it for you all the time. एकमात्र आनंद की जगह जो है वो आध्यात्मिक जगत है। हम इस जड़ जगत में आनंद का प्रयास करते हैं, बट यहाँ कोई आनंद नहीं है। So we can achieve the spiritual world simply by constantly hearing and chanting the glories of the Lord. Satam prasangam mama virya sambido. Yeah. तो हम बड़ी आसानी से आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं निरंतर रूप से भगवान की कथाओं का श्रवण करके। This is the formula. ये इसका एकमात्र तरीका है। And there's so many wonderful stories of Krishna's pastimes. बहुत ही दिव्य भव्य लीलाएं हैं भगवान की जिनको हम श्रवण कर सकते हैं। You could listen your whole life and you won't even get a small amount of what is available. आप अगर अपने पूरे जीवन भर भी इन लीलाओं का श्रवण करेंगे तब भी आप सारी लीलाओं में से कुछ छोटा हिस्सा ही कवर कर पाएंगे। If you don't really attracted to Krishna, maybe you like Ram. हो सकता है आप कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो, आपको भगवान राम के प्रति आकर्षण हो। Yeah, how Ram kills, so many rakshasas, and भगवान राम ने बहुत सारे राक्षसों का वध करा है। maybe we like the fighting pastimes. हो सकता है आपको युद्ध वाले जो वीर्य रस वाले लीला हैं वो पसंद आए। There's so many. Even Krishna kills so many demons. बल्कि कृष्ण भी बहुत सारे राक्षसों का वध करे हैं अपनी लीलाओं So में। any particular mood of activity you can find in Krishna's pastimes. जिस भी रस का आप आस्वादन करना चाहते हैं आपको कृष्ण की लीलाओं में वो मिल जाएगा। Unlimited. वो अनिश्चित रूप से आपको बहुत सारी लीलाएं मिल जाएंगी। Arjuna is asking Krishna to talk about his opulences, his activities. यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण से उनके ऐश्वर्यों का बखान करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। This is what the devotees look for, the happiness that they derive hearing about the glories of the Lord. यही एक भक्त जो है ढूंढता है हर बार भगवान की कथा को श्रवण करके आनंद की प्राप्ति करना, Which are unlimited. जो कि असंख्य है। And as Krishna says in the Bhagavad Gita, Janma karma chime divyam evam yo veti tattvataha taktva deham purna janmani naitimam eti surjuna. If you hear and chant the glories of my pastimes and you understand them as being transcendental, then when you leave this body, your destination is the spiritual world. तो जैसा भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान कहते हैं कि यदि आप भगवान के जन्म कर्म लीला गुण रूप नाम के बारे में यथा रूप से समझेंगे कि वे किस प्रकार से आध्यात्मिक हैं, तो आप इस शरीर का त्याग करने पर दूसरे शरीर में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, आप भगवान के धाम जा सकते हैं। So we have so many books.
हमारे पास कई प्रकार के ग्रंथ हैं, and there's so many pravachans. बहुत सारे प्रवचन भी हैं हमारे पास। So we continue to hear. यदि हम निरंतर उनका श्रवण करेंगे, When we get full in hearing, जब हम पूर्ण रूप से भर जाएंगे उस what श्रवण से, happens? तो क्या होगा? Then we want to chant. और जब हम उसको जप And करेंगे, we want to speak Krishna's हम pastimes. कृष्ण के बारे में बोलना चाहेंगे उसके बाद, And what is the result of that? और उसका उसका फल क्या है? Smarnam. भगवान का स्मरण होना। One remembers God constantly. और इसके माध्यम से एक व्यक्ति भगवान का निरंतर स्मरण कर सकता है। And when one remembers the Lord through hearing about Him, then one's spiritual life is complete, perfect. और इस प्रकार जो व्यक्ति निरंतर भगवान का स्मरण कर सकता है, तो उसके माध्यम से उसका जो आध्यात्मिक जीवन है उसकी वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Prashna? किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़े करके पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 2 साल पहले आस्था का एक हृदय में बीज बोया गया था, जो कि आज बड़ा होकर उसमें फल लगना शुरू हो गए हैं, और फल वैराग्य का लगा है। एक तरफ परिवार और एक तरफ संसार की सारी आत्माएं, जो कि ऐसा लगता है कि अब शब्दों में मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा, परंतु सब जैसे इंतजार कर रहे हैं प्रभु का। अब ऐसे मोड़ पर आप मेरा मार्गदर्शन करें। Hare Krishna. Maharaj is saying, like around 2 years before, he got some way to develop some faith in Krishna consciousness. He's practicing that from around 2-3 years, and now he has some feelings of vairagya renunciation, but he also has some responsibility toward the family. So he's little bit confused and bewildered between the two. Yeah. You don't have to give up your family. आपको अपने परिवार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। Just take up Krishna conscious. You can become Krishna conscious in family life also. आपको सिर्फ कृष्ण भावना भावित होना है, और अपने परिवार के साथ रहते रहते कृष्ण भावनामृत का जो है प्रशिक्षण प्राप्त करके उसको फॉलो करना है। Many great devotees were grihastas. बहुत महान भक्त हुए हैं जो गृहस्थ हुए हैं। We have Lord Chaitanya. He had Advaitacharya. Advaitacharya, he was married. हम चैतन्य महाप्रभु के समय से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अद्वैत आचार्य जी का, जो कि एक गृहस्थ थे। Srivas Thakur. श्रीवास ठाकुर का। Even the Lord takes on a wife. स्वयं भगवान कृष्ण ने पत्नी का वरण करा था। So there's no, what we say, disqualification for practicing spiritual life in household life. तो गृहस्थ होकर भी आप आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। ये कोई रोड़ा या ऑब्स्टेकल नहीं है। But you should know one thing. और आपको एक चीज पता होनी चाहिए। Bhakti Vinod Thakur, he gives the formula. भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में आप जान सकते हैं, वो गृहस्थ थे। Manaso geho deho, manaso deho geho, yog ichu more, arpilu tu alpade, Nanda Kishore. Nanda Kishore Krishna, my home, my family, my possession, everything I have, it belongs to you. भक्ति विनोद ठाकुर के गान के भाव को आप समझ सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं, हे भगवान कृष्ण नंद किशोर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब आप ही का है। So if you understand everything belongs to Krishna, then you can serve Krishna in any ashram. यदि आप इस वस्तु को समझ पाएंगे कि भगवान कृष्ण का ही दिया हुआ सब कुछ आपके पास है, तो आप हर आश्रम में भगवान कृष्ण की भक्ति का पालन कर सकते हैं।
Are you losing your attachment for grihastha life? क्या आप गृहस्थ जीवन के प्रति अपनी आसक्ति को दूर जाता हुआ अनुभव कर रहे हैं? Okay. Come and join the temple. आप चाहें तो मंदिर ज्वाइन कर सकते हैं, But that might not be, you have family too, right? लेकिन आपका परिवार भी है ध्यान रखने के लिए. His family? Bring them along. They can join the temple too. उन सब के साथ आप चाहें तो परिवार ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा मंदिर. Yeah. If we can be Krishna conscious with wife, with children, हम कृष्ण भावनामृत का पालन कर सकते हैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहकर भी. but if you want, you can ask, my dear wife, can I take sannyas? बट अगर आपकी तीव्र इच्छा है तो आप अपनी पत्नी से पूछ सकते हैं कि क्या मैं संन्यास ले सकता हूँ. She'll say, no, 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 no. और अगर वो कहती है नहीं नहीं, What to do? तो फिर आप क्या कर सकते हैं? So then you bring her to the temple too. तो आप उनको भी मंदिर में लेके अपने साथ आ सकते हैं. And she can do seva at the temple. वो भी आपके साथ भक्ति में साथ दे सकते हैं. And you can be going out preaching with the brahmacharis. आप चाहे तो उसके बाद फिर ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर सकते हैं. So you can be Krishna conscious with the family or without a family. आप चाहे तो परिवार के साथ और परिवार के बिना दोनों ही रूप से कृष्ण भक्ति का पालन कर सकते हैं. Lord Chaitanya, भगवान चैतन्य, he was traveling in South India. वो दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे. He came to the house of one brahmana. वे एक ब्राह्मण के घर पर पधारे. He had a family. वे एक गृहस्थ थे. And Lord Chaitanya stayed at his house for 4 days, accepting seva. और चैतन्य महाप्रभु लगभग 4 दिन तक उनके घर पर रुके और उनकी सेवा को स्वीकार करा. After 4 days, Lord Chaitanya wanted to leave. और 4 दिन के पश्चात वे वहां से जाना चाहते थे. So he was leaving. वे जब जा रहे थे, The Brahman, the Kurma Brahman, it was Kurma Kshetra, he was following Lord Chaitanya. Lord Chaitanya said, where are you going? और जब वो जाने लगे तो वो जो ब्राह्मण थे वो चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे जाने लगे और उनको पुकारते हुए. And he said, I'm coming with you. वे कहते हैं कि मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ. He said, how can you do that? You have your family. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप ये कैसे कर सकते हैं, आपके पास परिवार है साथ में. He said, that's okay, I'm coming with you. उसके बाद भी वे कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आऊंगा. Lord Chaitanya said, no, you go back. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, आप वापस जाइए. And he said, by my command, be guru, save the land. और मेरी इच्छा के अनुसार आप वहां पर जाइए. और Then he told him, everybody you meet, tell them about Krishna. और हर व्यक्ति को जाकर के कृष्ण के बारे में प्रचार करें. Everyone you meet, teach them to chant Hare Krishna. जिससे भी आप मिल रहे हैं उसे कृष्ण के बारे में बताएं, कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए प्रोत्साहन दें. And then he said, if you do that, you'll always have my association. और यदि आप इस तरह से प्रचार करते हैं तो आप हमेशा मेरी संगति को प्राप्त करेंगे. So you can stay with the family and just preach Krishna consciousness at home or wherever you are. तो आपके लिए भी एकमात्र समाधान है कि आप अपने परिवार के साथ रहते हुए भगवान के नाम गुण रूप का प्रचार करें जहां भी आप जा रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं उससे. And then when it's time, when all the children are grown up and there's no more family responsibility, then you can take sannyas. और फिर जब समय आएगा जब आपकी जो संतान है वो बड़ी हो जाएगी और ठीक व्यवस्था में होगी, तब आप उन सबको त्याग करके आप भले आश्रम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको इस आज्ञा का पालन करना चाहिए. TK? Okay? TK? Okay? हरे कृष्ण. Okay or TK? Which one? हरे कृष्ण साउंड थोड़ा सा बढ़े. हरे कृष्ण महाराज. I have one question. Question. हरे कृष्ण. तो मेरा प्रश्न ये है कि आप बता रहे थे परीक्षित महाराज के बारे में. परीक्षित महाराज इस प्रकार 7 दिन तक कथा सुनने के बाद भी उनको थकान नहीं हुआ और वो बहुत उत्साहित हो रहे थे कथा सुनने के लिए. तो हमारे मतलब मेरा परिस्थिति ये है कि जब मैं कथा सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बाहर जाता हूँ वहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है. तो इसको
कैसे समझे कि निरंतर कैसे भगवान को स्मरण करें, भगवान को भूल जाते हैं कथा सुनने के बाद। Hare Krishna. Maharaj is saying that as you said that Maharaj Parikshit was listening to Srimad Bhagavatam continuously for 7 days. He was not fatigued, he was not tired, he was very much enthusiastic. So he says when he is also hearing Katha, Krishna Katha, he's feeling very good, very enthusiastic. But at the same time, something other than the Katha is also enthusiastic for that. So how to develop that seriousness, that attachment to hearing for long, and so that he can develop the attachment for hearing of Lord's pastimes. Don't stop. Just keep hearing, keep chanting, keep remembering Krishna. आप रुकिए मत. There's no, in spiritual life, there's no block. The block is just we create a block in our mind, but there's no block. महाराज कह रहे हैं आप रुकिए मत, आप निरंतर रूप से भगवान की कथा का श्रवण कीजिए, भगवान के बारे में जपिए, और आध्यात्मिक जीवन में कोई रोड़ा नहीं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं, आपको रुकना नहीं, आपको निरंतर उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना है. Try to see Krishna in everything. हर वस्तु में भगवान कृष्ण का दर्शन करने का प्रयास करिए. When you're eating prasadam, you say, "This is Krishna." जब आप प्रसाद पा रहे हैं तो समझिए कि आप भगवान कृष्ण को पा रहे हैं. When you're in the temple, you say, "This is Krishna's temple." जब आप मंदिर में हैं तो ध्यान रखिए कि ये कृष्ण का मंदिर है. These are Krishna's devotees. ये कृष्ण के भक्त हैं. Try to see Krishna everywhere. Then you're never lost. Krishna says, "One who sees me everywhere, he sees everything in me. I'm never lost. He's never lost to me." तो आपको हर वस्तु में कृष्ण का दर्शन करने का प्रयास करना है. जैसे कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति हर वस्तु में मुझे और मुझ में हर वस्तु का दर्शन करता है, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता. Give up sleep less and read more. आप निद्रा को कम करके ज्यादा पठन कर सकते हैं. The Goswamis, they were so busy in Krishna consciousness, they forgot to eat. जो गोस्वामी थे वो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे कृष्ण भावनामृत का अनुसरण करने में, वे खाना तक नहीं खाते. It's not that they didn't want to eat, they just were so busy they forgot. ऐसा नहीं कि उन्हें भूख नहीं लगती थी, बल्कि वो इतना व्यस्त रहते थे कि वे भूल जाते थे खाना. Like Maharaj Parikshit, he was so absorbed in Krishna, he forgot to eat. जैसे महाराज परीक्षित पूर्ण रूप से कृष्ण की कथा में निमग्न थे, तो वे भूल गए कि ये भूख जैसी कोई चीज होती है. Thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी, साक्षात दंडवत प्रणाम. अभी आपने जो कहानी बताई थी उसमें बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि घंटियां उनकी नौकर है और उन्होंने उनको आदेश दिया था कि बजे नहीं, लेकिन वह फिर भी बजी. उनके नैवेद्य लगने पर वह घंटियां बजने लगी. तो क्या भगवान ने उन्हें श्राप नहीं दिया घंटियों को, और उन्होंने भगवान के आदेश का अवहेलना की तो उन्हें दंड नहीं मिला? As you said that about the past time when Krishna was stealing butter and there were bells all over the paraphernalia. So when Krishna ordered the bells not to ring, in spite of that, when they rang while he was eating butter, so why Krishna did not curse them or punish them for this particular offense? Krishna wanted to get caught, क्योंकि कृष्ण स्वयं पकड़े जाना चाहते थे, so he could give special mercy to that lady. क्योंकि वे उस गोपी को स्पेशल अपनी विशेष कृपा देना चाहते थे. Acha. इसलिए Acha, hey? सही है. Okay. That was special mercy. Over here. हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि इस्कॉन मंदिर की स्थापना कब, कहां से और किसके द्वारा हुई, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कृपा करें. ओके. Who founded ISKCON temple, when and where?
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. He is sitting right here under Vyasa-san. He founded the first ISKCON temple in New York City in 1965. तो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जो रचना करी थी वो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चंडारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने करी थी, जो यहीं पर हमारे सबके समक्ष विराजित हैं। उन्होंने पहले मंदिर की रचना न्यूयॉर्क क्षेत्र में 1965 में करी थी। Yeah. And that was the first temple in 1965, and since then ISKCON temples are all over the world now. तो न्यूयॉर्क में 1965 में पहले मंदिर की स्थापना करी गई थी और उसके बाद अब विश्व में हर जगह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर मौजूद हैं। Okay? ठीक है। Okay. This lady over here, give the lady. हरे कृष्णा। Hare Krishna. जो संपूर्ण प्रकृति कृष्ण ने ही बनाई है और संपूर्ण जगत गोस्वामी जी ने कहा भी है, सीता राम में सब जग जानी। हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण है, तो प्रकृति में और कृष्ण में विशेष अंतर क्या है, डिफरेंस विशेष? She is asking that since Krishna made this whole nature and all the things, so what is the basic difference between the nature and Krishna? Well, do you have a child? क्या आपकी कोई संतान है? So what's the difference between you and your child? तो आपके और आपके संतान के बीच में क्या अंतर है? You're the mother, and she's the child, but she comes from you. तो आप उनकी माता हैं और आपकी संतान आपसे आ रही है, ना कि। So everything comes from Krishna. तो इस रूप से हर चीज भगवान कृष्ण से प्रकट होती है। So in one sense, it's the same as Krishna, but in the same time, it's different than Krishna. तो एक प्रकार से ये कृष्ण के समान भी है और कृष्ण से भिन्न भी है। The nature is Krishna's energy जो प्रकृति हो भगवान की शक्ति है to carry on the activities in this world. जो अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप इस विश्व के अंदर हो रहे हैं उसको वो निर्धारित करती है। And Krishna controls the nature. और कृष्ण जो है इस पूरी प्रकृति पर नियंत्रण करते हैं। He said, "This is my nature." और इसलिए कृष्ण कहते हैं ये मेरी प्रकृति है। It's his creation. और ये उनकी सृष्टि है। Thank you. There's some questions over there. We got this young boy here. He's very कृष्ण महाराज, मेरा enthusiastic. प्रश्न है कि परीक्षित महाराज को क्यों और किस वजह से श्राप मिला था? He asks us, why did Maharaj Parikshit get cursed? तो ये बालक पूछ रहे हैं कि क्यों परीक्षित महाराज को श्राप मिला था। In the Srimad Bhagavatam, in the first canto, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में the story is there. एक कथा आती है। He was traveling. वे भ्रमण कर रहे थे। He came to a hermitage. वे एक कुटिया के निकट आते हैं। One sage was there. एक ऋषि वहां पर थे। His name was Shamak Rishi. उनका नाम शमिक ऋषि था। Maharaj Parikshit was thirsty. महाराज परीक्षित को प्यास लगी थी। He'd been traveling for a long time and he wanted a glass of water. वे बड़े लंबे समय से भ्रमण कर रहे थे, उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं थी। So he requested the sage to give him a glass of water. उन्होंने उस ऋषि से प्रार्थना करी कि उन्हें कुछ पीने के लिए जल प्रदान करें। But the sage was in meditation लेकिन वो जो ऋषि थे वो ध्यान में मग्न थे and he didn't pay any attention. और उन्होंने उनकी बात के प्रति ध्यान नहीं दिया। So Maharaj Parikshit became angry. महाराज परीक्षित थोड़े क्रोधित हुए। He took a stick. उन्होंने एक डंडा लिया। He saw a dead snake on the ground. उन्होंने उस डंडे के माध्यम से एक सांप को उठाया। So he picked up the dead snake, and he put it around the rishi, and he तो left. उन्होंने उस मृत सर्प को उठाया और उनके गले में इस तरीके से रख दिया। And so that rishi had a son. His name was Shringi.
तो उस ऋषि के एक संतान भी थी जिनका नाम श्रृंगी था। How old are you? What is your age? 14। Okay, Shringi, he was 12. श्रृंगी की आयु 12 वर्ष की थी। And he got angry because he heard that his father was insulted by the king. लेकिन श्रृंगी को क्रोध आया क्योंकि उन्हें पता पड़ा कि उनके पिता का अपमान हुआ था इस राजा के द्वारा। Now he was a brahmana. वे एक ब्राह्मण थे, He had some power. उनके पास कुछ शक्तियां थी। So he cursed Maharaj Parikshit to die. उन्होंने महाराज परीक्षित को मृत्यु दंड जैसा श्राप दिया। Maharaj Parikshit, when he heard about the curse, महाराज परीक्षित ने जब इस श्राप के बारे में सुना, he was powerful enough to counteract the curse. महाराज परीक्षित बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे कि वो श्राप को निष्फल कर सकते थे, But he didn't. पर उन्होंने करा नहीं। He accepted the curse. उन्होंने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। He saw it as an opportunity to go back to the spiritual world. उन्होंने इस श्राप को एक अवसर के रूप में देखा जिसके माध्यम से वे आध्यात्मिक जगत पे वापस जा सकते थे। It's a long story. You can read it in the first canto of Bhagavatam. तो आप पूरे कथा के बारे में पहले स्कंद श्रीमद् भागवतम में पढ़ सकते हैं। Okay. There's this gentleman there, over there, yeah, with the hand up. Mhm. Any more ladies have questions? Shakshi, you have question? Okay. Mhm. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रभुपाद जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, वो विदेश में जाकर प्रचार प्रसार करा तो यहाँ भारत में प्रसार नहीं हुआ। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सुख दुख आते रहते हैं, पर स्थायी सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? Second is we are having temporary kind of happiness and sorrows. So is there a way to find permanent happiness? Well, Srila Prabhupada tried to preach in India before he came to America. श्रीला प्रभुपाद जी ने प्रयास करा था भारत में प्रचार करने का बाहर विदेशों में जाने से पहले। He got a preaching center in a place called Jhansi. Jhansi is near Delhi. तो उन्होंने एक प्रचार केंद्र की स्थापना भी करी थी झांसी में, जो कि दिल्ली के नजदीक है। But as hard as he tried, he couldn't get any success in preaching in India. उन्होंने बड़ी ही कड़ी मेहनत और प्रयास करा था भारत में प्रचार करने का, लेकिन उनको कुछ खासा सफलता भारत में प्राप्त नहीं हुई थी। He was thinking, वे प्रयास कर रहे थे। he received instructions from his spiritual master in 1922 to go to the Western countries and bring this knowledge to the West. उनको उनके आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से कुछ जो है इंस्ट्रक्शन आदेश मिले थे 1922 के करीब कि उन्हें पाश्चात्य जगत में जाकर वैदिक ग्रंथों का, कृष्ण का प्रचार करना है। Prabhupada was a family man. क्योंकि प्रभुपाद एक गृहस्थ थे। He also was a businessman. और उनके पास एक व्यापार भी था। And so he stayed in India to try to preach in India. तो इसीलिए वे भारत में रुके और भारत में रहते हुए प्रचार करने का प्रयास किया। He thought, let me preach in India. If I become successful here, then I can go to the West. उन्होंने ये सोचा कि मैं प्रयास करता हूँ भारत में प्रचार करने का, यदि मुझे यहाँ सफलता प्राप्त होगी तो फिर मैं पाश्चात्य देश में जाऊंगा प्रचार के लिए। But as hard as he tried, Krishna would not let him become successful. और उन्होंने बहुत प्रयास करे, लेकिन कृष्ण नहीं चाहते थे कि वे यहाँ पर प्रचार करने में सफल हो। Because he was supposed to come to the West. क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी कि वे पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करें। So for 40 years, he tried preaching in India. तो लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने भारत में प्रचार करने का प्रयास करा। Very little results. बहुत ही कम सफलता उन्हें प्राप्त हुई। But after he went to America, लेकिन जब वे अमेरिका गए and he made many Western devotees, और वे बहुत पाश्चात्य देश के लोगों और भक्तों से मिले, he brought the Western devotees back to India. तब वे पाश्चात्य जगत के भक्तों को भारत लेकर आए। And he said to the Indian people, और उन्होंने भारतीय लोगों से कहा, you're giving up your culture,
but they're taking up your culture. उन्होंने भारतीय लोगों से कहा कि आप अपनी संस्कृति को त्याग रहे हैं और जो पाश्चात्य देश के लोग हैं वे आपकी संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं. He said many of them come from rich families. इनमें से कई जो भक्त हैं वो बहुत ही समृद्ध परिवारों से आ रहे हैं. They have more money than you can even imagine. उनके पास इतना धन और समृद्धि है जितना आप सोच भी नहीं सकते. They gave it all up उन्होंने वे सारी समृद्धि और धन का त्याग करा because they understood Krishna is better. क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि कृष्ण इस समृद्धि से कई ज्यादा बेहतर है. Then Prabhupada preached in India उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार करा. after he became successful in the West. जब वे पाश्चात्य देश में सफल हुए उसके बाद उन्होंने And भारत then में he प्रचार sent all of his Western disciples to different places around the world to open preaching centers. किया. और उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने अपने कई पाश्चात्य जगत के शिष्यों को विश्व के अलग अलग देशों में कोनों में भेजा प्रचार करने के लिए और केंद्र स्थापित करने के लिए. So Krishna arranged for him to be successful only in America, and then when he became successful there, then he was successful everywhere else. तो ये कृष्ण की ही व्यवस्था थी. उन्हीं का निर्णय था कि श्रील प्रभुपाद पहले अमेरिका में प्रचार में सफलता प्राप्त करें और उसके बाद वे भारत और अन्य देशों में जाएं. But it wasn't easy. पर ये आसान नहीं था. You read his life, the life of Srila Prabhupada explains what the difficulties he had in preaching Krishna consciousness. Very difficult. आपको श्रील प्रभुपाद की जीवनी और चरित्र को पढ़ना चाहिए तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कितने मुश्किल और परेशानियों के बाद ये प्रचार करा है. And he was 70 years old when he started. वो 70 वर्ष की आयु के थे जब उन्होंने इसकी शुरुआत करी. So, hardly anybody begins a worldwide preaching movement at 70 years old. लगभग कोई भी व्यक्ति या मनुष्य 70 साल की आयु में इस तरीके का महान प्रचार आंदोलन शुरू नहीं कर सकता. But by Krishna's arrangement, he was successful. लेकिन कृष्ण की इच्छा के अनुसार श्रील प्रभुपाद सफल हुए. And second question is, Second question was Maharaj, like he was saying, we are having flows of temporary happiness and sorrow. So is there a way to find out a permanent kind of happiness in this world? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. जप करो, कीर्तन करो. महाराज कह रहे हैं आप जप करिए, कीर्तन करिए हरे कृष्ण महामंत्र का, इससे आपको स्थित सुख की प्राप्ति हो. Enechya sari mayo nasi bara lagi, Hari nama maha mantra lao tumi magi. Asodi, that's the medicine. What is that? Hare Krishna. तो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम ही एकमात्र औषधि है आपके लिए. ठीक है, okay, अच्छा. We want Shakshi had a question, and then we can. Shakshi, last question. किसी को माताजियों में एक प्रश्न था, आई थिंक साक्षी कोई. Stand up, Shakshi. Yeah. She's from Indore. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Maharaj, as you were speaking about the importance of hearing, Srimad Bhagavatam, so my question is, what does it take for one to be the qualified recipient of Bhagavatam, and how do we cultivate that mood? What is the qualification for one to receive the mercy of Bhagavatam? Yeah, what does it take for one to be the qualified recipient of hearing Srimad Bhagavatam? You got the question? हरे कृष्णा. तो माता जी का प्रश्न इस प्रकार है कि महाराज ने कई बार श्रीमद् भागवतम के श्रवण के ऊपर बल दिया है, तो किन गुणों के माध्यम से एक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का अच्छा श्रवण करने योग्य भक्त बन सकता है? Service to the spiritual master. पहला है आध्यात्मिक गुरु की सेवा. By the mercy of the spiritual master, everything can be easily understood.
आध्यात्मिक गुरु की सेवा के माध्यम से हर विषय वस्तु को अच्छे से समझा जा सकता है। Pariprasyena, paripratena, sevaya. परिप्रश्नेन प्रणिपातेन सेवया। Pariprasyena means questions. परिप्रश्नेन का अर्थ है प्रश्न पूछना। Paripatena means dandavats. प्रणिपातेन का अर्थ है दंडवत, प्रणाम करना। Pranam. Karo. And sevaya means how can I serve? और सेवया का मतलब किस तरीके से हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। Then you can receive the knowledge. और इसके माध्यम से आप गुरु के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। That's the qualification. तो ये एकमात्र जो है इसके पीछे गुण है। Okay. So I have to be someplace at 3 o'clock, so we can do questions. Yeah. Question? Yeah. Okay. Yeah. We have some questions. हरे कृष्णा, आपको कैसा लग रहा है? एक बार जोर से। तो